નમસ્કાર, હું છું દીપાલી। મુંબઈમાં વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, એટલે કહી શકાય કે મુંબઈમાં મેઘસવારી પહોંચી ગઈ છે। મંગળવારે રાતથી વરસાદ અહીં વરસવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મુંબઈના દરિયામાં સવારે 11:43ની આસપાસ હાઈ ટાઇડ જોવા મળશે। દરિયામાં 4.16 મીટર ઊંચા મોજા ઉછળશે। મુંબઈ ઉપનગરોમાં પણ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે। બાંદ્રા, કુર્લા, ચેમ્બુર, અંધેરી, જોગેશ્વરી અને ગોરેગાંવમાં પણ વરસાદ છે, તો કાંદિવલી, બોરીવલી, મલાડ અને દહીસરમાં પણ જોરદાર વરસાદ વરસ્યો છે। મુશળધાર વરસાદને કારણે રસ્તા પર વિઝિબિલિટી પણ ઓછી થઈ ગઈ। કેટલાક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે હજુ આગામી 4 દિવસ સુધી મુંબઈ સહિત સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદ રહેશે। કોંકણ જિલ્લામાં વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કરાયું છે। તો મુંબઈમાં ભારે વરસાદને પગલે સાયન કુર્લા રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। લોકોને વધારે હેરાન ન થવું પડે તે માટે CSMT કુર્લા વચ્ચેની ટ્રેન સેવા સવારે 9:50થી સ્થગિત કરી દેવાઈ છે। मुंबई में एक बार फिर से तेज बरसात शुरू हो गई और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 9 जून से 12 जून तक मुंबई और मुंबई सहित MMR रीजन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तस्वीरें आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर सुबह के वक्त तेज बरसात हो रही है और साउथ मुंबई से लेकर सबर्बन एरिया हर जगह पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुंबईकरों से लगातार BMC अपील कर रही है कि अगर जरूरत ना हो तो आप अपने घरों से ना निकले। इसी के साथ साथ नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ इन इलाकों में भी तेज बरसात हो रही है। रायगढ़ में भी कई गांवों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया है और दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं मुंबई पुलिस के कर्मी लगातार यहां पर अपनी नजर बनाए रखे हैं कि लोग अगर कहीं फंसे हों, उन्हें मदद की जरूरत हो तो मदद की जाए। साथ ही BMC भी चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दे रही है। તો મુંબઈમાં કહી શકાય કે સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળ્યો છે અને આ સાથે જ મુંબઈમાં મેઘાની સવારી પહોંચી ગઈ છે। તમામ વિસ્તારોમાં અત્યારે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી હજુ પણ 2 કે 3 દિવસ સુધી આ પ્રકારનો માહોલ રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ગઈકાલ રાતથી જ મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ બદલાયું અને વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી। ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ છે, તો મુંબઈના દરિયામાં 12:15 વાગ્યાની આસપાસ હાઈટાઇડની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે અને હાઈટાઇડ દરમિયાન 4.16 મીટર ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે। જોકે આગામી દિવસોમાં જે વરસાદ રહેશે તેમાં ખાસ કરીને કોંકણમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે અને હવામાન વિભાગે આ વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે। બાંદ્રા, કુર્લા સહિત ગોરેગાંવ સહિત તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ છે। કાંદિવલી, બોરીવલી, મલાડ અને દહીસરમાં પણ જોરદાર વરસાદ વરસ્યો છે। ભારે વરસાદને કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ ગઈ છે। પાણી ભરાવાથી વાહન ચાલકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તો અનેક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાતા મુંબઈકરાઓ પરેશાન થયા છે। તો હજુ પણ આગામી 3 થી 4 દિવસ સુધી અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગનું જે અનુમાન હતું તે જ રીતે ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે। મુંબઈ સુધી ચોમાસું પહોંચી ગયું છે અને આગામી 24 થી 48 કલાકની અંદર સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ચોમાસું બેસી જશે અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાની પ્રવેશ થશે। પરંતુ તે પહેલા અત્યારે મેઘરાજાની ધમધોકાર સવારી મુંબઈ ખાતે પહોંચી ગઈ છે। મંગળવારે રાતથી અહીં વરસાદે વરસવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। સાર્વત્રિક વરસાદ અહીં જોવા મળ્યો છે, તો ચોમાસાની એન્ટ્રીની સાથે દરિયામાં હાઈટાઇડની પણ ચેતવણી અપાઈ છે। 12:15 વાગ્યાની આસપાસ દરિયામાં 4.16 મીટર ઊંચા મોજા ઉછળવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। મુંબઈના જે તમામ ઉપનગરો છે ત્યાં ભારે વરસાદ અત્યારે વરસ્યો છે। બાંદ્રા, કુર્લા, ચેમ્બુર, અંધેરી, જોગેશ્વરી, ગોરેગાંવમાં પણ વરસાદ નોંધાયો। વહેલી સવારથી જ અહીં ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। કાંદિવલી, બોરીવલી, મલાડ અને દહીસરમાં પણ જોરદાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સાયન કુર્લા રોડ પર અત્યારે પાણી ભરાયા છે। CSMT કુર્લા વચ્ચેની ટ્રેન સેવાને 10:15 વાગ્યાથી જ સુરક્ષાના કારણોસર બંધ કરી દેવામાં આવી છે, કારણ કે તમામ જે રેલવેના ટ્રેક છે તે અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। તમામ જગ્યાએ સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। મેઘરાજાની જે એન્ટ્રી છે તે ખૂબ જ ધમાકેદાર રહી છે। સમગ્ર
મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે અત્યારે મુંબઈગરાઓ પરેશાન થઈ રહ્યા છે। હજુ પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદ આ જ રીતે સતત વરસતો રહેવાની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે અને તેમાં પણ કોંકણ વિસ્તારમાં કહી શકાય કે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। કોંકણ જિલ્લામાં આગામી 2 થી 3 દિવસ દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। तो मुंबई थी हमारा संवाददाता गिरीश અત્યારે हमारी साथ जुड़ाएला है। गिरीश, अभी मानसून महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, मुंबई में बारिश हो रही है, किन किन इलाकों से अभी क्या अपडेट मिल रही है? देखिए दीपाली जी, कल रात से मुंबई में तेज बारिश शुरू हो चुकी है और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसीलिए मुंबई के कई निचले हिस्से हैं जहां पे अब जल भराव शुरू हो चुका है। मुंबई की जो ट्रैफिक है उस पर भी इसका खासा असर पड़ा हुआ है। मैं फिलहाल मुंबई के घाटकोपर इलाके में हूं और यहाँ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये नज़ारा देखिए, कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है। जो गाड़ियाँ चल रही है उनकी रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रेलवे है CSMT से लेके कुर्ला तक वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ट्रैक पर पानी भर चुका है। और सेंट्रल रेलवे ने साफ तौर पे कह दिया है कि कुर्ला के आगे ठाणे तक रेलवे चलेगी और अगली सूचना मिलने तक कुर्ला से CSMT तक सारी रेलवे लाइनें बंद होगी। हार्बर और सेंट्रल लाइन पर भी बरसात का सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मानसून मुंबई में दाखिल नहीं हुआ है, ये मानसून से पहले की बारिश है। पश्चिम बंगाल में जो दबाव का क्षेत्र निर्माण हुआ है उसकी वजह से, उसके चलते यहाँ पर बरसात हो रही है। मुंबई में अगले 3 दिन इसी तरीके से बरसात होगी, ऐसा हवामान विभाग ने कहा हुआ है। और उसी के तहत अब मुंबई में जो जनजीवन है उस पर इसका खासा असर पड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो भी अब रास्ते पर उतर चुके हैं। बूस्टर पंप्स लगाए गए हैं, जगह जगह से पानी निकालने का काम चल रहा है। लेकिन 11:45 पर मुंबई के समंदर में हाई टाइड है और हाई टाइड के चलते जो पानी है वो फिर से शहर में लौट रहा है और जगह जगह पे बारिश का पानी भरना अब शुरू हो चुका है, जिससे जनजीवन तो विस्कलित हो ही रहा है, जनजीवन पर तो असर पड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ आप देख सकते हैं। जी गिरीश, आज हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है, तो उसको लेकर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए जितने भी बीचेस हैं मुंबई में, बहुत सारे बीचेस हैं और जुहू बीच रहे, गिरगांव बीच रहे, गेटवे ऑफ इंडिया रहे, यहाँ पे सतर्कता बरती गई है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई है, साथ ही साथ BMC के अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। आसपास के समंदर के आसपास के इलाके में कोई भी जाए नहीं, ऐसी सूचनाएं भी महानगर पालिका की ओर से प्रसारित की गई है। और इसी के साथ साथ मुंबई के जो महापौर हैं उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मुंबईकर अपने घरों में ही रहे, घरों के बाहर ना पड़े। अगर बाहर पड़ते हैं तो उनको ऐसे ही जल भराव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा मुंबई के सड़कों पे निचले इलाकों में है, जहाँ पे जो मेन होल्स हैं वो अब खुल चुके हैं। तो मेन होल्स में गिर के जान और माल का भी नुकसान होने का सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए BMC ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। वार्डरूम बनाए गए हैं, बूस्टर पंप्स लगाए गए हैं। मुंबई के जो निचले इलाके हैं जैसे सायन है, हिंद माता है, कुर्ला है, चेंबूर है, यहाँ पे भी मिलन सब्वे हैं, यहाँ पे भी बूस्टर पंप्स लगाए गए हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल न करें। 4 रास्ते जो हैं वो मुंबई के बंद कर दिए गए, जिसमें सायन है, वडाला है, हिंद माता है। तो रोड डाइवर्जन भी किया गया है और सारे बसेस को उन्हीं रास्तों से जाने की हिदायत भी दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पानी मुंबई के सड़कों पर भरा हुआ है वो अब किस तरीके से निकाला जाएगा। तो जैसे ही बारिश कम होगी पानी कम होगा, लेकिन बारिश कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पानी बदस्तूर जारी है, बरसात बदस्तूर जारी है और इसी के मद्देनज़र, इसी के चलते पूरी बम्बई शहर का इसी तरीके का हाल देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक जाम का मजमा लगा हुआ है, देख सकते हैं कि गाड़ियों का रेला दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन यहाँ पर है। जहाँ तक नज़र आप दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। आज चूँकि छुट्टी का दिन नहीं है, इसीलिए आज सुबह से मुंबई के जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर गिरे हैं। प्राइवेट बाइक्स उन्होंने निकाली है, ऑटो है, टैक्सी है, इसी के साथ ढेर सारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रेलर भी है, क्योंकि जो काम लॉकडाउन में रखड़ चुका था उस काम को भी पूरा करना है और इसीलिए सारे मुंबई के रात सड़कों पर दिखाई तो दे रहे हैं। और
पानी के अंदर कहीं ना कहीं वो फंसे हुए